Okay. So we'll start with the chemical bonding section wise. The first topic covers introduction to bonding and the ionic bond in detail. Now, first of all, we know that in the periodic table, the atoms do not exist in its stable state except the inert gases. Inert gases can exist in its atomic state because it has its octet complete or duplet in case of helium is complete. But बाकी सारे atoms जो है, they are unstable and do not exist in its atomic state. So to become stable, it needs to either share the electrons, lose or gain electrons in order to complete the octet and become stable. So this particular correlation was given by octet rule. Octet rule क्या बोलता है कि any atom of the periodic table can become stable by completing the set of 8 electrons in the valence shell, and that can be achieved by sharing, losing or gaining electrons. But octet rule was able to justify the stability of only few of the molecules. बाकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी थे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, फिर भी they were found to be stable. Like we have the example of incomplete octet molecules which have less than 8 electrons in the valence shell, BCl3, AlCl3. Similarly, expanded octet molecules जहां पर 8 electrons से ज्यादा है, PCl5, SF6. So such type of compounds were also found to be stable. तो octet rule यहाँ पर violate हुआ. So इस rule के बाद the various other theories were identified to explain the bonding within the molecule. So that is the introduction to the bonding part. Okay. Now, when we talk about the bonding over here, we are talking about the bonds which are present within the molecule. If I talk about the bonds or the forces of attraction between the molecules, then we will be talking about intermolecular forces of attraction. मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में ऑलरेडी कवर किया है, राइट? Yes, sir. We can have the weak van der Waals forces which was classified into dipole, dipole induced dipole, ion induced dipole. ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में है. And as I always say, the intermolecular forces describe the physical properties of the compound, but the chemical properties of a compound is determined by its intramolecular bonds. तो यहाँ पर जो bonds की बात कर रहे हैं, they are the bonds present within the molecule which are called intramolecular bonds. And the three most common type of intramolecular bonds are covalent, which is formed by sharing of electrons, ionic, which is a force of attraction holding the ions together, and a special type of covalent bond called coordinate covalent, in which एक atom share करता है और दूसरा is donating the entire set of 2 electrons or a pair of 2 electrons. ठीक है, कोवेलेंट में बोथ द एलिमेंट पार्टिसिपेट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में एक ही एलिमेंट डोनेट करता है, दूसरा जस्ट उसको शेयर करता है, और आयंस के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आयोनिक बॉन्ड. With this, let's start with the MCQs. First one, ionic bond A plus B minus is most likely to be formed when ionization energy of A is high or low, electron affinity is low or high, या both are high, both are low. Which will be the correct answer? 2. Obviously, cation बनाने का energy is the ionization energy, and ion can be easily formed if the ionization energy is low. And anions के लिए electron gain करने का enthalpy is called electron affinity. And जितनी electron affinity ज़्यादा होगी उतना anion formation would be easier. Hence, of course, the ionization enthalpy is low and the electron affinity should be high for an ionic bond formation. Now, talking about electron affinity, which is the element in the periodic table having the highest electron affinity?
Chlorine. In fact, among the halogens, the order was chlorine followed by fluorine, then bromine, iodine, acetylene. And for the group 16, the electron affinity order was ऑक्सीजन कहां पर था इसमें? Was it sulfur greater than oxygen, then selenium, tellurium? सेकेंड पे नहीं था. हाँ, it's last. ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, ये तो याद हो जाना चाहिए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मैंने 3 ही ऑर्डर बार बार रिपीट किया है. ग्रुप 17 का, ग्रुप 16 का सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन हैज अ वेरी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एंड अमंग क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑब्वियसली क्लोरीन सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर और लास्ट में ऑक्सीजन. दिस 3 ऑर्डर शुड नेवर एवर बी फॉरगॉटन. Clear? Yes, sir. Next, which forms a crystal of NaCl? NaCl molecules, ions, or the atoms, or none? Ions. An ionic compound ka crystal will obviously be consisting of the constituent particles as the ions. और आपने solid state के videos अगर देखे हैं तो NaCl actually has a FCC salt-like structure. FCC. What do you understand by FCC? Center. Face centered cubic, जहां पर the species would be present at the corners and also at the faces of the cube. Now this is the most important part over here. Which of the following shows the highest lattice energy? Tell me, lattice energy was related to which other parameter which we can use to compare? Covalent character. Superb. That's it. Matlab, if there is a question about the lattice energy, then it is same as covalent character of the compound. And covalent character of any compound can be analyzed by using which rule? Pajan's rule. Pajan's rule. And the 3 important criteria of Pajan's for covalent character is? Small cation, large anion, and high positive charge. Super. Covalent character will be higher for a compound having a small cation with a large anion and a high positive charge. On the other hand, ionic character for a compound would be greater with a large cation, small anion, and a low positive charge. Okay, and covalent character is also called as polarizing power. Which S block metal has the highest polarizing power? Lithium. Lithium. तो पोलराइजिंग पावर को एक्सप्लेन करने के लिए आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ अ टेनिस बॉल वर्सेस अ फुटबॉल. दोनों के ऊपर +1 का चार्ज है, but because of the small surface area, this positive charge is distributed over lithium, due to which it has a tendency to attract the negative charge of the anion, and that is why there is a partial sharing between the Li plus and the Cl minus, giving rise to the covalent character. So such type of compounds are not completely ionic. So LiCl is actually an ionic compound with a Covalent character. and HCl is a Covalent compound with ionic character. तो हमेशा ये 2 एग्जांपल्स याद रखो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर. फाइन विद दैट? Yes.
Now this lattice energy for the ionic compound is basically related to the Coulombic force of attraction between the ions. तो दो ions के बीच में the force of attraction is proportional to Q1 Q2 by R square. product of the charges of the ions Q1 Q2 upon the square of the distance between the ions. So this is how the lattice energy relates with for an ionic compound. ठीक है, तो once again अगर क्वेश्चन में which of the following has highest lattice energy या covalent character या polarizing power है, answer remains the same. Please understand this, it's very important. और हम कर चुके हैं ये S ब्लॉक के चैप्टर में, राइट? So now question 4, which of the following shows the highest lattice energy? So your first observation is common चीज क्या है? anion. Anion is common. Also, they belong to the same group. So Charge. the charge remains the same. मतलब which criteria actually will be compared? Size of the cation. Size of the cation. So lattice energy is proportional to the covalent character, and for a high covalent character, cation should be. Small. Or And the answer is Na. Na. अगर lithium option में होता तो obviously lithium would had the most covalent character or the highest lattice energy. अब next में which of the following have low lattice energy? अब observation is anion का variation, cation और charge same है. So in this case, what should be the answer? Why? Yes. CSF होना चाहिए. Now, as per low lattice energy, obviously you will find the anion with a smaller size. क्योंकि large anion would give you high covalent character or the high lattice energy, CSI का theoretically, right? क्योंकि हमने ये वाला criteria देखा है. But halides में when there is fluoride, chloride, bromide or iodide, apart from this particular criteria of covalent character, there is the enthalpy of formation which also plays a very important role. Enthalpy of formation. So the energy which is released when 1 mole of a compound is formed is called the enthalpy of formation. और जिस मॉलिक्यूल का डेल्टा HF नॉट ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी वुड बी High. हाई. मोर द डेल्टा HF मोर द स्टेबिलिटी. और S ब्लॉक के लिए हमने ये वाला ग्राफ देखा है. डू यू ऑल रिकॉग्नाइज दिस ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. It's the graph of enthalpy of formation of the S block halides versus the S block का alkali metals. और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो किसी भी मेटल का फ्लोराइड अगर रहेगा तो उसका डेल्टा HF नॉट इज Highest. हाईएस्ट. नेगेटिव साइन तो सब में कॉमन ही है, तो आप मैग्नीट्यूड को अगर कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली फ्लोराइड्स हैव द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसीलिए फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए उस पर्टिकुलर लैटाइस को तोड़ना सबसे मुश्किल. मतलब फ्लोराइड्स irrespective of the metal will always have the highest lattice energy. Just have a look at this. कहाँ गया? अच्छा, एक और टेबल था. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसी भी मेटल का, चाहे लिथियम का फ्लोराइड देख लो, सोडियम का फ्लोराइड, it is always having the highest delta HF naught. So among the halides with the cation fix, the lattice energy down the group goes on Decreasing.
डिक्रीजिंग, मतलब लो लैटिस एनर्जी CSF का नहीं CSI का होता है। तो यहां पर एक सिंपल सा शॉर्टकट बनाता हूं मैं आपके लिए। लैटिस एनर्जी इफ cation is varying, then it can be decided by, how did we decide for question 4? Size of the cation. ना, if cation is varying, anion fix हो गया ना बाबा इसमें, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So here it is to be decided by the size of the cation, बराबर। तो जितना छोटा cation उतना लैटिस एनर्जी High. हाई रहेगा, ठीक है। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी नहीं बताता हूं, इसका डिपेंडेंसी बोल देता हूं कि लैटिस एनर्जी इफ cation इज वेरिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय cation साइज। And lattice energy if cation is same as and anion is varying, then it's to be decided by anion size। और अगर वेरिएशन की बात करूं तो फर्स्ट केस में इट विल बी इनवर्स, राइट। Yes, sir. एंड नेक्स्ट केस में जितना अनायन का साइज बड़ा होगा उतना उसका लैटिस एनर्जी कम होगा, समझा। क्योंकि अगर F की बात करें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। नाउ अगर आप देखोगे तो द चार्जेस फॉर ऑल द आयंस रिमेन्स द सेम ना, Q1 and Q2 remains the same, करेक्ट। Yes, sir. तो हैलाइड्स के केस में हमेशा याद रखना इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द अनायन साइज एंड इट इज उल्टा एज पर द कोवेलेंट कैरेक्टर फर्चांस रूल का 3 क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें हमने डिसाइड कैसे किया, स्मॉल कटायन के लिए हाई लैटिस एंथैल्पी होगा और इस केस में स्मॉल अनायन का हाई लैटिस एंथैल्पी होगा। तो उल्टा हो गया ना, इसीलिए यहां पर ये ध्यान रखना है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आल्सो प्लेज अ बिग रोल। समझा क्या? Yes, sir. तो यहां पर फजान्स रूल अप्लाई होगा, सेकंड केस में नहीं अप्लाई होगा, बस ये ध्यान रखना है। So can you compare the lattice energy between NAF and CSI? NAF and CSI. NAF एंड CSI। अब इस केस में भी अगर चार्जेस की बात करें तो +1 × -1 मतलब मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है। अगेन डिस्टेंस के ऊपर बात आ जाती है, ठीक है। Yes, sir. तो इस केस में स्मॉल कटायन शुड बी क्लब्ड विद अ लार्ज अनायन, स्मॉल कटायन विद अ लार्ज अनायन। अगेन जब हैलाइड्स है तो अनायन को आप कंपेयर मत करो एज पर द फजान्स रूल, तो आपका कंपैरिजन जो है वो कटायन के हिसाब से होगा। तो Na का +1 और CS का +1 विच इज द स्मॉल कटायन NA. Na। और डाउन द ग्रुप सीजियम की तरफ आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर हमेशा कम रहेगा। इन शॉर्ट फॉर द मेटेलिक हैलाइड्स ऊपर वाला हैलाइड इज मोर कोवेलेंट एंड नीचे वाला हैलाइड इज लेस कोवेलेंट रादर मोर आयोनिक। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का कंपैरिजन यहां पर NAF के लिए ज्यादा होगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब अगर मान लो इफ आई कंपेयर Mg का क्लोराइड एंड Mg का ऑक्साइड, which will have a higher covalent character? Your observation should be now the anion is from the different groups. अब तक जो कंपैरिजन कर रहे थे
उसमें कटायन और अनायन एक ही ग्रुप के है. तो think on those lines and tell me which will have a high covalent character. बोलो. MgCl2. Why? Larger. Cl is larger than. आप देखो, अगर अनायन के बेसिस पे आप कंपेयर करने गए लेटाइस एनर्जी तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे मैंने यहां पर बताया है ना. इसमें भी अगर लार्ज अनायन से कंपेयर करते हैं तो आपका आंसर आता है CSI. तो अनायंस में कभी भी आपको साइजेस के बेसिस पे कंपेयर नहीं करना है, इनफैक्ट उल्टा हो जाता है रिलेशन. तो सबसे पहले अनायंस अगर अलग फैमिली से यानी अलग ग्रुप से है, देन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस विल बी द फर्स्ट क्राइटेरिया. जैसे यहाँ पर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2. अगर वो सेम ग्रुप के कटायन अनायन है तो चार्ज के ऊपर ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा. समझा? बट इफ दे आर फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप्स, यहाँ पर +2 और ये -1 है, और यहाँ पर ये +2 और -2 है, तो चार्जेस यहाँ पर 2 into 1 का प्रोडक्ट आएगा और यहाँ पे 2 into 2 का प्रोडक्ट आएगा. तो यहाँ पर ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ द lattice enthalpy. Hence MgO has a very high covalent character or lattice enthalpy as compared to Mg का क्लोराइड. इन शॉर्ट दो ही चीज याद रखो, अगर कटायन वेरिएबल है तो फजान्स रूल चलेगा, अनायन वेरिएबल है तो फजान्स रूल को उल्टा कर दो. एंड उसका एक ही रीजन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट. अनायन के लिए फजान्स रूल काम नहीं करता है. इनफैक्ट ये वाला ग्राफ जो है that was used to explain the solubility of the halides. Do you recollect that? Yes, sir. इनफैक्ट मैंने एक कंक्लूजन बताया था solubility के लिए. Can you tell me that? Solubility of all compounds decrease except for fluoride and hydroxide, which increases. Perfect, superb. Solubility of all the salts except fluorides and hydroxides down the group decreases, and the reason was which enthalpy dominating over what? Decrease in hydration enthalpy dominates the decrease in lattice enthalpy. Superb. मतलब लिथियम के लिए we know it is the most hydrated ion, तो इसीलिए solubility in general सारे salts का down the group बढ़ेगा because the hydration enthalpy would dominate over the lattice enthalpy. ठीक है, but exception यहाँ पर fluorides और hydroxides का था, जिसमें the lattice dominates over the hydration and that is why the trend was observed to be उल्टा. करेक्ट. और अब यहाँ पर आप जो रिलेशन देख रहे हो, आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्लोराइड के लिए द डेल्टा HF नॉट इज गोइंग ऑन, Decreasing. बट क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के लिए इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. इसीलिए सल्यूबिलिटी का फ्लोराइड्स के लिए ट्रेंड उल्टा हो जाता है. दैट्स इट. solubility decreases down the group in general due to hydration energy dominating over the lattice enthalpy. Exception यहाँ पर fluorides and hydroxides का है. बस solubility का कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो ये स्टेटमेंट से सॉल्व हो जाता है. Now coming to section B, it contains covalent bond, octet rule and coordinate bond. तो क्वेश्चन से समझते हैं. First one, the maximum covalency of representative elements is equal to excluding first and second period. ये भी हमने P block में पढ़ा है. Max covalency, S and P block elements are representative elements, is equal to what?
SN Yes, say. actual number of SNP electrons. Yes, it is the actual number of S and P electrons in the outermost shell. Third period में if I compare sodium and P block का aluminium, तो sodium का valency is 1 because it contains 1 S electron in the outer shell. Aluminium का valency is 3 because it contains 3 electrons. और ये जो 3 electron है, it is actually 2 electrons of S and 1 electron of P. Yes or no? Yes, sir. As per the electronic configuration. इसीलिए अल्यूमिनियम के बाद अगर आप सिलिकॉन देखो तो उसका 3s2 3p2 कोवेलेंसी 4 होता है. 3s2 3p3 इज फॉर फॉस्फोरस तो उसका कोवेलेंसी 5 है. ठीक है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल डिटरमाइंस द कोवेलेंसी. अच्छा, व्हाई दे हैव एक्सक्लूडेड द फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड? Because they are only as electron. Sorry, come again. Pratham? सेकेंड पीरियड के लिए तो कितनी बार स्टेटमेंट रिपीट किया है? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन हैव अ मैक्स कोवेलेंस ऑफ 4 बिकॉज ऑफ Absence of vacant d orbitals. एब्सेंस ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. याद है कि नहीं? ठीक है, तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही है, लेकिन उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स तो 5 है, लेकिन वो अपने कोवेलेंस को एक्सपांड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है. बट फॉस्फोरस के लिए विथ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इट्स मैक्स कोवेलेंस कैन बी इक्वल टू 5 इन PCl5, लेकिन नाइट्रोजन में NCl5 जैसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता. याद आ रहा है? सब कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट इज जस्ट अनदर नेम फॉर आयोनिक बॉन्ड, so contains both ionic and covalent bonds? 3. Which one? 3. Ammonium chloride. So we know that ammonium ion is formed by the combination of ammonia and the H plus. And ammonia अपना lone pair donate कर देता है H को, acquiring a plus, and it's attracted with the Cl minus. इनफैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट तीनों ही बॉन्ड्स हैं. और ये भी मैंने बताया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट, आयोनिक एज वेल एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. कैन यू गिव मी सम अदर एग्जांपल जहां तीनों बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? Quaternary ammonium salt is an ammonium compound only. In fact, all ammonium compounds will have the same thing. So QS is definitely an answer. What about complexes? Coordination complexes. A4FeCN6. Fe और साइनो लिगेंड के बीच में what bond is there? कोऑर्डिनेट. पोटेशियम और अनायोनिक लिगेंड के बीच में आयोनिक. और साइनो के अंदर देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. तो बेसिकली जो कटायोनिक और अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन सब में यू विल फाइंड आयोनिक, इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मैंने कटायोनिक और अनायोनिक इसलिए बोला क्योंकि अगर मेरे पास FeCO5 वाला, क्या बोलते हैं इसको,
कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, और ये न्यूट्रल होता है, तो ऑब्वियसली इसमें आयोनिक बॉन्ड तो होगा ही नहीं, बराबर। Yes, तो sir. कॉम्प्लेक्सेस में कटायोनिक और अनायोनिक में हमेशा 3 टाइप के बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, प्रोवाइडेड द लिगेंड इंटरनली हैज अ ट्रिपल और अ डबल और अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंगल एटम वाला लिगेंड होगा तो फिर नहीं पॉसिबल होगा, जैसे क्लोरो ब्रोमो आयोडो, समझते हैं ना। Yes, sir. नेक्स्ट, द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड इन, 2 and 3. obviously, because boron in BCl3 has only 3 bonds, meaning 6 electrons. So it's an example of incomplete octet compound, and such incomplete octet compounds are also called hypovalent. ये अलग अलग नाम है, hypovalent मतलब less than 8 electrons, and PCl5 में 5 bonds है तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो expanded octet, उसको हम एक और नाम बोल देंगे hypervalent। और CO2 में तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इनफैक्ट कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा ना तो वो ऑक्टेट रूल हमेशा सेटिस्फाई करेगा करेगा करेगा। सो द आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, शुड बी वेल नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी 1.7, more than that, 1.7 or more, equal to or less than 1.7. 3. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है 4. 4. A covalent bond will be formed when the difference in electronegativity is lesser और उसकी threshold value है 1.7, तो या तो वो equal होना चाहिए या 1.7 से ज्यादा। Equal हुआ तो भी covalent, लेकिन 1.7 से ज्यादा हुआ, more than 1.7, then only the compound would have high percentage of ionic character and will be considered as ionic. Clear? अब 7th के रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। For a given compound, we can find out the percentage of ionic character by the difference of electronegativity. And we have a formula for that, which is given as 16 times the electronegativity difference plus 3.5 times the electronegativity difference का square. तो अगर दो एलिमेंट्स दिया है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी हुई है, तो उनका डिफरेंस पता हो तो आप आयोनिक कैरेक्टर का परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। I'll give you an example. Best example is HCl. Now tell me, does HCl have more covalent character or more ionic character? Ionic. ज्यादा ionic character है उसमें। ये एक्चुअली कौन सा कंपाउंड है? Covalent. कोवेलेंट कंपाउंड है। इट हैज कोवेलेंट कैरेक्टर, सॉरी, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड बट विथ आयोनिक कैरेक्टर, लेकिन आयोनिक कैरेक्टर इसमें इतना ज्यादा नहीं होगा। अब कितना होगा वो एक्चुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हाउ मच? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन भाई 2.1, कार्बन 2.5 होता है, एंड क्लोरीन 3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज 0.9। Therefore, percentage of ionic character in HCl will be equal to 16 times 0.9 plus 3.5 into 0.9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 14.4 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो करीबन 3 आता है। तो द आंसर इज 17.2%, मीनिंग इट हैज 82%, 82.8% of covalent character and 17.2% ionic character. समझा?
Yes, sir. Yes, sir. So that is how we can find out ionic character. तो जितना difference जो है ज्यादा होगा उतना ionic character would be higher. ये difference 0.9 का ही है. अगर difference आप बढ़ा दो तो ionic character भी बढ़ जाएगा. ठीक है? That is what the question 7 actually relates with. Next, ammonia and BF3 combine readily because of formation of Coordinate bond. coordinate bond. But of course option 3. अब इसके related और एक question आया हुआ है वो बताता हूँ. When ammonia combines with BF3, is there a change in hybridization of nitrogen or boron? क्वेश्चन है कि जब अमोनिया BF3 से कंबाइन हो रहा है तो नाइट्रोजन या बोरॉन में इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन? Nitrogen, no. Boron, yes. नाइट्रोजन नो, बोरॉन यस. परफेक्ट. क्योंकि in case of nitrogen of ammonia we know that it is, what will be the hybridization? sp3 with, One lone. हमेशा ऐसे ही बोलो. जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप विथ लोन पेयर कितना है वो बोलना है. उससे क्या फायदा होगा? यू विल ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिस्टॉर्शन रिलेटेड टू द एलपी बीपी रिपल्शंस. करेक्ट. Yes, sir. So ammonia is sp3 hybridized with one lone pair. Boron in BF3 is sp2 with no lone. sp2 with no lone pair, मतलब perfect planar geometry. And now when it coordinates, it acquires a plus and boron acquires a minus. तो नाइट्रोजन अब sp3 ही रहता है लेकिन the lone pair is gone, zero lone pair. And boron tetravalent बन जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाता है. बराबर. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन डजंट चेंज, बोरॉन चेंजेस. अब ज्योमेट्री की बात करता हूं. डज द ज्योमेट्री चेंज फॉर नाइट्रोजन और बोरॉन? Yes. दोनों केस में Only boron. ओनली बोरॉन. अब जब मैं ज्योमेट्री बोलता हूं तो sp3 का ज्योमेट्री क्या है? Tetrahedral. Tetrahedral. एंड अगर एक लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल ही होगा. बिकॉज द लोन पेयर डिस्टॉर्ट्स एंड द शेप चेंजेस. याद आ रहा है? Yes, sir. ठीक है. तो ज्योमेट्री वर्ड यूज किया तो हम बोलेंगे ज्योमेट्री भैया चेंज नहीं होता है नाइट्रोजन का, शेप चेंज होता है. हाँ, बिकॉज नाइट्रोजन का शेप और अदर अमोनिया का शेप यहां पर पिरामिडल था और सामने टेट्राहेड्रल हो जा रहा है. और यहां पर प्लेनार से इट इज बिकमिंग टेट्राहेड्रल. आ रहा है समझ में? Yes. Okay. Next is a good question. The covalency of nitrogen in HNO3 is, without drawing the structure, answer is 4. of course. And what is the reason? Max covalency of nitrogen is 4. Perfect. सेकेंड पीरियड का एलिमेंट अगर है तो उसका मैक्स कोवेलेंसी 4 ही होगा. 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, मतलब 5 ऑप्शन रूल्ड आउट है. ऑब्वियसली 0 भी नहीं हो सकता, या तो 3 या तो 4. अब उसको भी अगर कंफर्म करना है, यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. नाउ HNO3 is an oxy acid of nitrogen. And the moment I speak the word oxy acid, what is the first bond you will draw? N double bond. नहीं, ऑक्सी एसिड में पहला बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ करोगे. OH. एन विथ OH. ऑक्सी एसिड में सबसे पहला बॉन्ड OH. रूल याद रखो, इससे कोई भी स्ट्रक्चर आप ऑक्सी एसिड का उठा लो आपको आएगा ही.
So the first thing is N with OH. Now the remaining two oxygen will be joined to nitrogen. तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्राइवेलेंसी उसकी सेटिस्फाई हो गई. अब जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट हो जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा. ये बन गया नाइट्रिक एसिड. And now the number of bonds surrounding nitrogen is 1, 2, 3, 4. Hence the answer is 4. Clear? Bolo. Yes, sir. Fine. Next, coming to third section, which covers Lewis structure, formal charges and resonance. तो Lewis structures तो अपना dot cross structure ही होता है. Resonance we have already discussed in much detail. Formal charge. Heard of this? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है? क्या होता है? The pseudo charge on each atom in the molecule. The pseudo charge on each atom in a molecule. तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर अगर एटम्स के ऊपर चार्जेस है तो वो उनका फॉर्मल चार्जेस होता है. And the best example to give that for that is, see, हर एक टॉपिक का ना एक टिपिकल एग्जांपल है, वो याद रखोगे तो कॉन्सेप्ट अपने आप याद रहेगा. So ozone molecule has a structure as O double bond O coordinate with O plus and minus. अब कौन से एटम पे कितना लोन पेयर है उसका भी एक शॉर्टकट बताया था. ऑक्सीजन अगर न्यूट्रल है तो इट विल ऑलवेज हैव 2 lone pair. 2. गरीब हो गया तो 1. गरीब मतलब प्लस, तो 1. अमीर होगा तो 3. 3. अब कोई भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन न्यूट्रल विल ऑलवेज हैव 2 LP, ऑक्सीजन प्लस विल हैव 1 LP, ऑक्सीजन माइनस विल ऑलवेज हैव 3 LPs. तो LP कितना है उसका टेंशन नहीं लेने का, बराबर. तो नाउ ओजोन ओवरऑल इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम के ऊपर जो चार्जेस है उनको बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस. एंड फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम इन कंसिडरेशन माइनस लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से लोन पेयर माइनस कर लो और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आधा करके माइनस कर लो, यू विल गेट द फॉर्मल चार्ज. कैसे? यहाँ पे ऑक्सीजन को मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 3 ऑक्सीजन 1, 2 and 3. सो O1 हैज अ चार्ज ऑफ 0, वो उसका फॉर्मल चार्ज है. कोई भी चार्ज नहीं है मतलब 0 ना. तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ तो फॉर्मल चार्ज एज पर द फॉर्मूला इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, कितना? 6 माइनस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स 4. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स. हाँ, एक लोन पेयर 2 लिखने का, 2 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 minus 4 minus half. How many electrons are shared? 4. हाफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आधा कर रहे हैं क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर कर रहे हैं. तो हाफ इंटू 4, तो 6 minus 4 हो गया 2 minus 2 हो गया 0. समझा? Yes, sir. फिर सेकेंड ऑक्सीजन के लिए 6 तो फिक्स है, माइनस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, माइनस हाफ इंटू अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? 6. ये होगा +1. और O3 के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज है वो तो दिख रहा है, फिर भी कैलकुलेट करके मैं जस्ट जस्टिफाई कर रहा हूं. इट इज इक्वल टू 6 माइनस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाफ इंटू एक ही बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये -1 हो गया. क्लियर? Yes, sir. इनफैक्ट नाइट्रिक एसिड में भी ये जो बॉन्ड के ऊपर
रिलेटेड एटम्स के ऊपर चार्ज है, दैट इज कॉल्ड इट्स फॉर्मल चार्ज ओनली. अप्लाई द फॉर्मूला, यू विल गेट द +1 and -1. Got it? Yes, sir. So now, formal charge understood. अब question देखो. Which of the following structure is the most preferred structure for SO3? सल्फर ट्राइऑक्साइड का सबसे प्रिफर्ड स्ट्रक्चर. Think about satisfying the divalency of oxygen so that it is stable. One. Obviously, अरे बाकी स्ट्रक्चर्स तो डायरेक्ट रूल आउट कर सकते हो, क्योंकि whenever sulfur is bonded to oxygen by single bond without any charge, it's a wrong structure ना. ऑक्सीजन का मोनोवैलेंसी और 3 लोन पेयर शुड ऑलवेज हैव अ नेगेटिव चार्ज. यही तो फंडा इधर बताया मैंने. सी, न्यूट्रल ऑक्सीजन इज ऑलवेज डाइवेलेंट विद 2 लोन पेयर, बाकी नहीं. Positively charged oxygen is trivalent with 1 lone pair, yes or no? Yes, sir. And negatively charged oxygen is monovalent with 3 lone pairs. इसके बेस्ट एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं. वाटर, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड. डू यू अग्री? Yes, sir. बराबर. तो अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड के साथ दिखे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना ही चाहिए. अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन डाइवेलेंस स्टेबल है तो ईच ऑफ द ऑक्सीजन शुड बी जॉइंड टू सल्फर बाय अ डबल बॉन्ड. The sulfur will be a hypervalent element in SO3. Hypervalent समझते हैं ना? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके आउटर शेल में. Next, what are the formal charges on central sulfur and each terminal oxygen in SO2? SO2 के स्ट्रक्चर में the 2 oxygens would be joined by Double bond. and the sulfur will have a One. तो बताओ फॉर्मल चार्जेस क्या होगा? Zero. 0. इन शॉर्ट फॉर्मल चार्जेस कब आते हैं? whenever there is a coordinate bond. जनरली आप देखोगे जहां जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां वहां फॉर्मल चार्जेस आया है. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट, which among the following resonance structures of N3 negative satisfies the octet rule but is ruled out of resonance structure? Satisfies octet rule but is ruled out of resonance structure. What is N3 negative ion called? Azide. Azide. And S block के azides were used in Preparation of pure nitrogen. preparation of pure nitrogen, and practically it is used in airbags because they are very spontaneously able to decompose and release nitrogen gas. ठीक है. अब अजाइड का स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन इज सराउंडेड बाय 2 नाइट्रोजन, तो वन ऑफ द नाइट्रोजन इज जॉइंड बाय डबल एंड सिंगल. तो सेंट्रल नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है और एक लोन पेयर बचा हुआ है, लेकिन दूसरे 2 नाइट्रोजन का ऑक्टेट अभी तक कंप्लीट नहीं है.
तो ये नाइट्रोजन बोलता है आई विल डोनेट माई इलेक्ट्रॉन पेयर टू यू, thus acquiring plus and the other acquiring a minus. And N3 नेगेटिव में ऑलरेडी एक नाइट्रोजन पे माइनस तो है ही. अब वापस वही चीज, if nitrogen is neutral, what will be its valency and lone pair? Trivalent with one lone pair. Trivalent with one lone pair. अब अगर एक लोन पेयर गया तो it will become Tetravalent with no lone pair. tetravalent and no lone pair. And अगर नेगेटिव चार्ज है तो Divalent with two lone pairs. and you can clearly think about the examples by bonding H. What is the first example? Ammonia, Next. ammonium, Next. What is this? sodamide, So what is NH2 minus? amide, अमाइड. अब ये अपना कार्बोनाइल वाला अमाइड नहीं है, ठीक है. मेटल्स के साथ जब NH2 माइनस होता है तो उनको हम अमाइड्स ही बोलते हैं. वैसे अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो NH2 इज अमाइन, CONH2 इज अमाइड. ठीक है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इनको हम अमाइड्स ही बोलते हैं इनऑर्गेनिक के केस में. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, द फर्स्ट नाइट्रोजन विद अ माइनस विल हैव हाउ मेनी लोन पेयर्स? 2. अगर प्लस है तो 4 वैलेंसी और एक सॉरी 4 वैलेंसी 4 बॉन्ड्स एंड नो लोन पेयर, वो जस्टिफाइड है. और नेक्स्ट में 2 लोन पेयर. ये हो गया अपना अजाइड का स्ट्रक्चर. थॉट प्रोसेस क्लियर है? yes, sir. अब माइनस एंड प्लस अगर एडजेसेंट में है तो देयर कैन बी अ डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर along with the shifting of the pi electron, thus giving rise to a structure wherein nitrogen is joined by triple bond and then single bond like this. मतलब ये स्ट्रक्चर, और रिवर्स में भी अगर मैं डीलोकलाइज करूं तो सेकेंड स्ट्रक्चर मिलेगा. मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ही. फोर्थ वाला भी ल्यूइस स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऑक्टेट कंप्लीशन के हिसाब से करेक्ट है. बट एक प्रॉब्लम है इसमें. थिंक ऑफ दिस. direct factors. Ring strain, रिंग स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन है. साइक्लोप्रोपेन हमें पता है एक बहुत ही अनस्टेबल साइक्लिक मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑफ द एंगल स्ट्रेन. और अगर उस एंगल उस साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड आ जाता है तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी होंगे. मतलब प्रैक्टिकली इस टाइप का साइक्लिक अजाइड आयन पॉसिबल होगा ही नहीं. तो ये ऑक्टेट रूल तो सेटिस्फाई करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but it can't be feasible structure because of the angle strain and the electronic repulsions. Hence the answer is 4 only. समझा? yes, sir. Okay. Now coming to this examples, ammonia, ammonium and amide. What is the hybridization of nitrogen in each case? sp3 गलत. with one, हाँ, आप सही. आगे बोलो. sp3 with no lone, And sp3 with two lone, so hybridization of nitrogen is same. What about geometry? tetrahedral, Is same. ज्योमेट्री अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे सेम है. शेप पूछा जाए तो इट इज डेफिनेटली डिफरेंट. पहले वाले का शेप कैसा होगा? pyramidal, नेक्स्ट. tetrahedral, एंड पेंट, एंगुलर, वी शेप, कुछ भी बोलो. तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस कम.
अच्छा, इसका बॉन्ड एंगल कंपेयर करने बोला तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसमें है? amide, अमाइड में सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल काहे? लोन पेयर की वजह से sorry, बॉन्ड एंगल बढ़ता। अमोनिया, वो भी गलत। ammonium, हाँ, अमोनियम। A pure sp3 will have a bond angle of 109.5. लोन पेयर आता है तो 107 और एक लोन पेयर आता है तो 104। याद है कि नहीं? Yes, sir. Lone pair creates distortion and decreases the bond angle. तो ammonium is greater than ammonia is greater than amide. तो मैंने एक वैरायटी यहाँ पर कवर किया जहां पर हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप, बॉन्ड एंगल, इनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइन। Yes, sir. Yes. Next should be well known. What is correct order of bond order of ClO bond? सोचना पड़ता है। Of course. क्यों आकृति? Bond order of ClO minus is only 1. Then ClO3 is 5/3. The Highest is 7/4. So ClO4 negative. Perfect. In fact, this particular question is related to the oxy acids of chlorine. And chlorine के 4 oxy acids है: perchloric acid, chloric acid, chlorous acid, आणि hypochlorous acid. In the oxidation states decreasing from 7 as 7, 5, 3 and 1 odd number sequence. And oxy acids के structure के लिए always start with which bond? OH. OH. तो एक हाइड्रोजन है तो एक OH वाला बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. तो अब यहाँ पर when you eliminate the H plus and form a conjugate base, ये एसिड है उसमें से H plus निकालो तो this is the perchlorate ion which is called its conjugate base. Now this conjugate base is very much stable by resonance, that is why it was the strongest oxy acid. दूसरी बात, यहाँ पर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का तरीका क्या था? तरीका Sigma plus pi upon oxygen. सिग्मा तो हमेशा एक ही होगा, तो 1 सिग्मा प्लस कितना पाई है? 3, और कितने पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 4. 1 sigma plus 3 pi by 4. That's how you get 7 by 4. ये 1.75 आ रहे समझ में? Yes, sir. तो परक्लोरेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर 1.75 आता है, फिर 1.67 आता है, 1.5 और 1. दिस इज द करेक्ट आंसर. और ये ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन में बहुत डिटेल में बताया मैंने. इनफैक्ट इसके 3 ट्रेंड्स जो है दैट आई हैड समराइज्ड एज साई ओडी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? stability and acidic strength increases as oxidation number decreases. No, sorry, नहीं. oxidation tendency decreases as oxidation number increases. Super. Stability and acidic strength increases. Acidic strength क्यों बढ़ता है? रीजन बताया वापस. Stability is dependent on number of bonds within a molecule. परक्लोरेट में सबसे ज्यादा bonds है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगा इसका, क्योंकि ऑक्सीजन निकालना यहाँ पर मुश्किल है. इसलिए क्या ट्रेंड था? स्टेबिलिटी एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस एज ऑक्सीडेशन नंबर increases from +1 नहीं
हाँ, +1 to +7। तो इससे 3 क्वेश्चंस या 3 ट्रेंड्स आपके डायरेक्टली क्लियर हो जाते हैं। समझा? Yes, sir. नेक्स्ट, VBT एंड हाइब्रिडाइजेशन के रिलेटेड। Now, VBT is the valence bond theory और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो डायरेक्टली कुड बी रिलेटेड विद द VSEPR। ठीक है ना। VBT के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, जब मैं लूंगा तो आई विल डिस्कस दिस VBT कॉन्सेप्ट इन डिटेल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड इज R। 1 sigma 2 pi. अब कार्बाइड्स की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा 3 कार्बाइड्स की बात करता हूं। बोलो कौन से? Calcium, magnesium, aluminum. कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या एल्यूमिनियम के साथ एक और डायगोनल रिलेशन। Beryllium. तो कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2। जब ब्रेक डाउन करोगे तो द अनायन इज C2-2 and that C2-2 is having the triple bond between the carbon with each carbon negative charge के साथ। That's why यहाँ पर आंसर तो सिंपल है कि 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। आंसर इज 2। उसके बाद अपना बेरिलियम कार्बाइड था Be2C, या फिर एल्यूमिनियम कार्बाइड था Al4C3। ये +3 या -4। तो इसका जो कार्बाइड है दैट इज C विद -4। एंड तीसरा है मैग्नीशियम का कार्बाइड। व्हाट वाज द अनायन ऑफ मैग्नीशियम कार्बाइड? C. याद करो उसका हाइड्रोलिसिस क्या दे रहा था? Propane. प्रोपेन नहीं, Propene. प्रोपीन भी नहीं। चलो गैस करो अभी। Propine. प्रोपाइन। इट वाज H3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड क्या किया मैंने, सॉरी, H3C C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब जब ये H को निकाल दोगे ना तो उसका अनायन मिल जाएगा आपको। तो दिस इज -3 एंड दिस इज -1। तो ओवरऑल क्या था ये? C3-4 वाला कार्बाइड और ये +2। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है Mg2C3। समझा? Yes, sir. तो इसी स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स क्या होंगे। अब ये सारे कार्बाइड्स आर गुड कॉन्जुगेट बेसिस एंड दे कैन इजीली एब्स्ट्रैक्ट H+। तो जब ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये देता है एसिटिलीन। दैट्स व्हाई वी प्रिपेयर्ड एसिटिलीन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। ये देगा आपको 4H+ ऐड करके मीथेन, और ये भी 4H+ ऐड करेगा लेकिन देगा प्रोपाइन। समझा? बोलो। Yes, sir. Perfect. Okay, so I'll stop here for today with chemical bonding. Time बचा है मुझे पता है because I want to take the doubt solving of the solid state. ठीक है, तो आगे नेक्स्ट सेशन में I will continue with the VBT, hybridization, Vesper, MOT. इनफैक्ट सारे टॉपिक्स मैंने कवर तो किए हैं। टाइम मिले तो यू जस्ट गो थ्रू द MCQs, यू विल रियलाइज, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, केमिकल बॉन्डिंग इज जस्ट अ रिविजन ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सब चीजें जितनी भी आज मैंने डिस्कस की है, आई हैव डिस्कस देम इन द ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप यू विल अग्री। ठीक है, सो आई स्टॉप हियर। जस्ट